سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ابو وفا نایاب اتاری کورنگی مجلس محبت بڑھاؤ مجلس حج اور عمرہ اولڈ از گولڈ۔ اب یہ اکثریت گولڈ ہی ہیں اور جو گولڈ ہیں وہ موت کے قریب قریب ہیں۔ باپا الحمدللہ فیضان مرشد کوئی 1980 سے لوٹ رہا ہے، کوئی 82 سے۔ کس طرح ہمیں استقامت میں ملے کہ ہم اس مدنی ماحول میں رہتے ہوئے ہی اس دنیا سے رخصت ہوں۔ باپا ایسی دعا فرما دیجئے کہ اسی ماحول میں جینا اور اسی ماحول میں مرنا نصیب ہو۔ ایمان اور عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت اور بقی شریف کی دعا سے نواز دیجئے باپا۔ اللہ اللہ۔ یہ غور کر رہا تھا کہ جب جو بڑھاپا آتا ہے نا، بڑھاپے میں دو حرص بڑھ جاتی ہے، ایک تو پیسوں کی، دوسرا کھانے کی۔ بڑھاپے میں ہضمے تھوڑی ہوتے ہیں یار، پانی ہضم ہونا مشکل ہوتا ہے۔ میں صحیح بولتا ہوں، پانی ہضم ہونا مشکل ہوتا ہے۔ پانی پیو پیشاب کرو، پانی پیو پیشاب کرو، ہضم نہیں ہوتا، کچا کچا نکل رہا ہوتا ہے۔ مطلب بڑھاپے میں عوارض ہوتے ہیں۔ 50 سال کے بعد جو ہے نا، آپ بھول جاؤ تندرستی کو، جوانی کو۔ 50 سال کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آنکھوں میں موتیا ہو جائے گا، کان سننے میں تعاون نہیں کریں گے، آنکھیں دیکھنے میں برابر ساتھ نہیں دیں گی، ہاضمہ ڈسٹرب چلتا رہے گا۔ پھر کھانے کا جو انداز ہے وہ بھی ہمارا درد کا والا ہے، چبانا ہے نہیں صحیح اور نگلنا ہے، پھر کیا کھانا یہ بھی سمجھ پڑتی نہیں، جو ملا کھایا۔ پھر شادیوں کی دعوتوں میں جا کر مطلب آگے پھر سینہ سہلاتے رہے، جلن آج بہت ہو رہی ہے، یہ تو آسان ہے، سستے چیٹوں خالی جلن ہی ہو رہی ہے۔ تو بہرحال دنیا دیکھی بھالی ہے، اس میں تو یہی مشورہ دوں گا کیا ہے، آپ یوں ذہن بنا لیں کہ ہم نے اپنے حصے کا کھا لیا، اب خالی وہ جینے کے لیے کھانا ہے نا۔ ایک فارسی محاورہ ہے، خوردن برائے زیستن، یعنی زندہ رہنے کے لیے کھانا، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن حساب الٹا ہے، زیستن برائے خوردن، یعنی زندہ رہنا کھانے کے لیے۔ ہماری یہ مصیبت ہے۔ اب بقرعید آئی، بیل بکرے سب کو کلی اختیارات، جس نے جانا ہے اندر سینگ لڑائے۔ پھر جو حال ہوتا ہے، جس کو دیکھو جو پیٹ پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے۔ رمضان شریف آیا تو وہ تو دعوت کا مہینہ ہے، کھاؤ پیو، خوب تلی ہوئی چیزیں ہم کھاتے ہیں، تو پھر جو بھگتتے ہیں وہ بھی پتہ ہوگا کھانے والوں کو، اس لیے وہ بچ کے۔ تو یہ مطلب حرص بڑھ جاتی ہے سر۔ جوانی میں تو چلو ہوتی بھی ہے، بوڑھاپے میں بھی یہ کم نہیں ہوتی، یہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور کچھ سوچ کا پڑتا نہیں ہے آخرت کی تیاری کا۔ حالانکہ بچپن میں تو اتنا شدھ بدھ ہوتی نہیں، کھیل کود میں ہی وقت نکلتا ہے۔ جوانی آتی ہے، تھوڑی وہ سمجھ پڑتی ہے، لیکن جوانی دیوانی، مگر یوں ہوتا ہے کہ ابھی تو یار ٹائم ہے۔ پھر ادھیڑ عمر آتی ہے، پھر بھی ہوتا ہے کہ یار ابھی بڑھاپا باقی ہے۔ لیکن بڑھاپے کے بعد ادر آپشن نتھنگ، اب کوئی آپشن نہیں ہے الا واحد، اور وہ ہے موت۔ بڑھاپے کے بعد صرف موت کا آپشن ہے۔ ویسے بندہ جوانی میں چلا جاتا ہے اپنی جگہ پر، لیکن اگر یہ ساری منزلیں عبور کرتا رہا، موت سے بچا کر وہ نکلتا رہا
کہ اس کا وقت پورا نہیں ہوا تھا، اب آیا بڑھاپے کی ذیلی میں، اب بچ کے جائے گا کہاں، اب بھاگ کے دکھا. یعنی اربوں خربوں روپے کو بلینک چیک دے دے، بڑھاپا پلٹے گا نہیں، آپ جوانی پر نہیں آ سکتے، سوال ہی نہیں. اب وہ طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، چلا نہیں جاتا، بیٹھا نہیں جاتا، وہ مسائل ہی مسائل، مسائل ہی مسائل، مسائل مسائل، اور پھر موت. اب ایمان پتہ نہیں سلامت رہے گا نہیں رہے گا. اب اس کی فکر بھی نہیں ہے، عام طور پہ فکر ہوتی نہیں ہے، اور بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے. اس کی فکر بھی ہونی چاہیے. تو اس لیے بڑھاپے میں آخرت کے لیے محنت زیادہ ہونی چاہیے، اصول یہ ہے. لیکن ہم بے اصولی لوگ ہیں. غالباً حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے، ان کا واقعہ ہے کہ یہ جب ان کی عمر بڑھ گئی، ہم ان کو بڑھاپا بھی کیسے کہیں، بزرگی ہے نا، وہ جب عمر بڑھ گئی، بزرگی آئی، عبادت اور بڑھا دی، ریاضت محنت، ریاضت مانے محنت، لیکن یہ عبادت میں محنت کو عام طور پہ کہا جاتا ہے ریاضت. انہوں نے ریاضت بڑھا دی. آپ آرام کریں، آرام کا ٹائم میں اتنی کیوں مشقت کرتے ہیں؟ کیا فرمایا پتہ ہے کہ جب منزل قریب آتی ہے تو سواری تیز کر دی جاتی ہے. نا موت کی منزل اب قریب آئی ہے تو سواری تیز کرنی کہ جلدی جلدی جو ہو سکے وہ نیکیاں اکٹھی کر لیں پھر چلیں دنیا سے. یہ وہ سوچ تھی. ہماری سوچ بالکل یعنی کہ اس سے الٹ ہے. تو اگر یہ سوچ بنے گی ہماری تو جا کر کچھ ہوگا. کہ آخرت کی تیاری، اب تو اتنی مصروفیات اب رہی بھی نہیں ہوگی. جن کے بیٹے جوان ہیں وہ کماتے ہوتے ہیں. اب بوڑھا جو ہے وہ اس کا کام ہوتا ہے گھر میں پڑے رہنا اور لڑائیاں کرتے رہنا. یہ بھی ہوتا ہے. پھر وہ سمجھتا ہے کہ میری گھر میں عزت نہیں ہے. تو گھر میں اگر بوڑھا تو بوڑھا، اگر جوان بھی پڑا رہے گا نا، گھر والے اس سے تنگ آ جاتے ہیں ایک کسی طرح جائے. کیونکہ جب بوڑھا ہوگا یا جوان ہوگا، گھر میں پڑا رہے گا، کچھ بولے گا. اب وہ جو بولے پھر یہ کچن میں صفائی نہیں ہے، یہ ڈینگی کا ہے، دیکھو یہ پانی بھرا ہوا ہے ہٹاؤ، آج کل ڈینگی چلا ہوا ہے. اور یہ برابر خیال رکھو، یہ چوہے آ رہے ہیں، چھپکلیاں آ رہی ہے. آج وہ کھانے میں نمک زیادہ تھا، خیال رکھنا، یہ جل رہا کھانا، بس بس اتار لو اتار لو. اب وہ جا کر کچن میں جا کر انٹرفیئر کریں گے تو پھر وہ کچن والی جو ہوگی اگر وہ بھی غصے والی ہے تو بولے گی دادا جان آپ سنبھالیں، آپ پکائیں تو پتا چلے گا پکاتے کس طرح ہے. ابھی تک تو کھانے کا کام کیا تھا، پکانے کا کام کرو، وہ لڑائی ہو جائے گی. تو اس طرح ٹک 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 صفائی کی تو بولے ادھر کچرا رہ گیا، ادھر مٹی رہ گئی، دیکھو ادھر او کونے میں جالے رہ گئے ہیں. تو یوں اگر آپ کرتے ہیں تو لڑائی ہو جائے گی. پھر ان کی آپس میں ڈسکس ہوگی تو آپ پھر انٹرفیئر کریں گے. تو آپ کو کوئی اگر کوئی سمجھدار ہوا کہ آپ بولیے، کیوں حق بات نہیں کروں گا، میں غلط بول رہا ہوں. پھر جو مطلب پھر بزرگوں کا حال ہوتا ہے، مجھے پتا ہے کہ میرے گھر پر بھی بعض اوقات اس طرح کے میرے پاس لوگ آئے ہیں، بوڑھے بوڑھی، گھر سے نکال دیا ہے میرے کو، یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے، میرے جوان بیٹے میرے ساتھ یہ سلوک. اب یہ کہ ہم اپنے ڈیپ جائیں تو پتا چلے نا کہ کہانی کیا ہے. تو اس سے میں آپ کو یہ چلو چلتے چلتے ایک یہ بھی مدنی پھول کہ اگر ایسا کچھ ہے تو آپ گھر میں رہنا ہے، سکون سے رہنا ہے. اندھے گونگے بہرے بن کر رہو گے آپ موج کرو گے. آپ نے ذرا بھی انٹرفیئر کیا تو یہ جوان لوگ آپ کی سنیں گے نہیں. یہ واقعی 100% غلط کر رہے ہوں گے لیکن آپ کی نہیں سنیں گے. بوڑھا آدمی دیکھنے میں بھی تو اچھا نہیں لگتا نا. اب وہ حسن جہی جمال نہیں، بولنے میں وہ تیزی اور یہ جو لچک ہوتی ہے یا کوئی خوبصورتی ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہے. الفاظ بھی پھسل رہے ہوتے ہیں، زبان بھی کروٹیں بدل رہی ہوتی ہے، بولنا کچھ چاہتا ہے اور بڑے میاں کی منہ سے بیچارے کے نکلتا کچھ ہے تو پھر مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ موقع ہے چپ چاپ اللہ اللہ کریں، درود شریف پڑھیں، مصلی بچھائیں، نوافل پڑھیں، درود و سلام پڑھیں. یہ خاندان آپ کے قدم دھو کر نہ پیوے، میرے کو بولنا، باقی آپ بولو گے تو کہیں کے نہیں رہو گے. یہ وہ دور چلا گیا کہ بولے تھے نا
बोर बेचा है। आप ये चुप रहे हुए ना, पर उसका ही माल बिकता है घर में। तो घर में, खानदान में आपको वडप चाहिए, बुजुर्गी चाहिए, लोग रिस्पेक्ट करें तो मेरे नुस्खे पर अमल करें, अल्लाह करेगा तो मौज करेंगे। वरना फिर इस वक्त बात समझ रहे होंगे कि वाकई यार मेरे घर का माहौल है ऐसा कि वो मेरी कोई सुनता नहीं है, तो आप सुनाना छोड़ दें, तो इंशाल्लाह फिर सुनेंगे आपकी, फिर आपसे मशवरा भी करेंगे। फिर औलाद क्या करती है पता है? मैं किसी के घर पे था, वो बेचारा बूढ़ा बाप जो था मेरे से कुछ टॉकिंग गुफ्तगू वो करता, तो उसका जवान बेटा जो था मैंने देख लिया उसको सर, बस बस करो। अब बाप पर गुजरती क्या होगी बेचारे पर यार। अब इसका बाप लूज टॉकिंग कर देता होगा बेचारा, तो इसलिए वो बेटा के मेरे सामने कोई ये मतलब लूज टॉकिंग ना करे, कोई राज ना खोल दे घर के। ये होता है बुजुर्गों में कि राज भी खोल देंगे, क्या का क्या मतलब कर डालेंगे, फसाद करवा देंगे। तो इसलिए वो शायद रोक रहा होगा उसको। खैर ऐसा करना नहीं चाहिए बेटे को, अब हो रहा है ठीक है तो बर्दाश्त करे और क्या। कि इस तरह बाप की दिल आजारी तो फाइनल है, ये लूज टॉकिंग करे ना करे तो बात की बात है ना। अभी से उसकी दिल आजारी तो हो गई, बाप को अच्छा तो नहीं लगेगा बेटा जब यूं यूं करता है। अब्बू चुप, बाप को लगेगा यार मेरे को मामा समझता है, बेवकूफ समझता है, ये बोलने नहीं देता मेरे को। ये एहतियात है, मैं आपको अर्ज कर रहा था। बहरहाल ये कि अब आपका वक्त, जो बुजुर्ग हैं तो मेरे जैसा बूढ़ा अब ये जवानी का ख्वाब नहीं देखे तो इसके हक में बेहतर है कि अब आखिरत की तैयारी में बढ़ा दे, तैयारी एकदम बढ़ा दे, और दीन का काम भी करे, इबादत भी करे। अल्लाह ना करे कोई नमाजें कज़ा बाकी हैं, रोजे कज़ा बाकी हैं, ये भी इसको भी अब नहीं भुगताएंगे तो कब आप ये पूरे करेंगे? सब कर्जे हैं, कोई हुकूकुल इबाद के मामले हैं, किसी को झाड़ जुड़ दिया था, किसी को मतलब बुरा भला कहा था, किसी को ठोक दिया था, जवानी में सब होता है। तो ये मतलब ये करना शुरू कर दें, अल्लाह करेगा तो दुनिया से जितना हुकूकुल इबाद से फारिग हो जाएंगे ना, तो इतना इंशाअल्लाह आखिरत में आसानी होगी। आपके लिए इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा अना को फना करना पड़ेगा कि जिसको कुछ मार मुर दिया था या कोई गाली नऊजुबिल्लाह निकल गई थी, तौबा तो करनी है, तो उसको भी राजी करना होगा। जबान भारी होगी आपकी, लेकिन अभी जबान भारी होना, थोड़ा मतलब शर्मिंदगी उठा लेना, ये आसान है। कब्र में ये या आखिरत में ये सब बर्दाश्त हो नहीं सकेगा, अल्लाह नाराज हो गया तो। इसलिए बस आप नमाजों की पाबंदी अगर नहीं है, जमात की पाबंदी नहीं है, और ऐसी मजबूरी भी नहीं है कि जमात से आप नमाज ना पढ़ सकते हो, तो जमात की पाबंदी तो लाजमी यहाँ से लेकर जाए आप। या पांचों नमाजें तकबीर उला के साथ पहली सफ मैंने संभाल ली है। जवान भी खुशफहमी में ना रहे, स्कूटर चलाते हुए तो कोई बस कल्टी हो रही है तो किसी का कुछ तो किसी का कुछ, ये भी जा रहे हैं दुनिया से। तो हर उम्र में बिल्कुल यानी कि वो रेडी 1 2 3 हो, रेड अलर्ट, ये कब बुलावा आ जाए। काम ये कि बुढ़ापे के लिए तो मैंने कहा ना आगे को ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए अपने आप को तैयार रखें। तो इज्तिमा की पाबंदी अपने ऊपर बिल्कुल लाजिम कर लें, अपने बेटों को भी फुसला कर गुस्से से समझाएंगे तो बेटा नहीं समझेगा। कभी कभी हुआ है, मेरा बेटा मानता नहीं है, इज्तिमा में नहीं आता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, तो जब यूं बोलते हैं ना, ये खुसूसी में कभी कभी हुआ है, जैसे अभी खुसूसी है, आप बताएं मैं क्या करूं। अब मैं सोचता हूँ कि यार ये इधर सैकड़ों के सामने ये तड़फड़ ये बुजुर्ग जो बोल रहे हैं, खुदा जाने घर में उसका असर क्या करते होंगे। अब ये बेटा कैसे आ गया इज्तिमा में? घर में भी इसी तरह कहते होंगे, जब तो यहाँ कह रहे हैं ये मानता नहीं है, बड़ा बदतमीज है, बेअदब है, नाफरमान है, आप कुछ दुआ कर दें, कोई पढ़ने का बताएं। तो सबसे बड़ा वजीफा ये कि आप उसने अखलाक अपना लें, नरमी का डोज पी लें। नरमी का डोज पी लेंगे ना, बेटा बोलेगा अब्बू जाओ तो मुझे लेते जाना, क्या अकेले चले जाते हैं इज्तिमा में। इंशाअल्लाह यूं बाजी जब पलट आएगी, अल्लाह करे कि ये बातें भी मेरी सबकी समझ में आती हो। समझाना हमेशा नरमी से ही काम देता है, अड़ी से, मार दाड़ से, गुस्से से थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बल्कि दिल आजारी और गुनाहों की सूरतें भी पैदा हो जाती हैं। इसलिए अब मदनी मुज़ाकरे में आए और
मदनी काफिले में सफर का मैं बोलता हूँ, मैं डर डर के बोलता हूँ, सही बात यह है कि अगर मदनी काफिलों के जो बुजुर्ग आदी नहीं है ना, तो जो जो उम्र बढ़ती है गुस्सा चिड़चिड़ापन इसमें भी इजाफा आमतौर पे होता है। सबका वही जरूरी नहीं है। मेरा गुस्सा अल्हम्दुलिल्लाह कम हो गया है पहले के मुकाबले में। जो जो उम्र बढ़ती जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह गुस्सा मेरा कम होता जा रहा है। ये मतलब कुदरती बात है, ऐसे हो सकता है दूसरों के साथ भी होता हो। ये जनरली गुस्सा बढ़ता है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है, झाड़ना मिजाज में मजीद आ जाता है। तो ये मतलब सब मदनी काफिले में जवान होते हैं, उनके साथ ये करेंगे जाकर बुजुर्ग, तो फिर मदनी काफिला जो है वो भी मुंतशिर हो सकता है, परेशानियों में इजाफा हो सकता है। तो जो बुजुर्ग अपने ऊपर एतमाद करते हैं कि मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, तो ये जवान है, इनकी अपनी सोचें हैं, गलत ही सही, आपकी सही दुरुस्त, लेकिन इनको छेड़ना नहीं। अगर लड़ाई नहीं कर सकते तो जाना चाहिए। अब महीने में 3 दिन क्यों, 6 दिन, 2 बार जाए। हमारे यहाँ 12 माह के लिए बुजुर्ग आते हैं, लेकिन हम लोगों ने भी, हमारी जो मजलिस है इन्होंने भी वो 50 साल की कैद रखी है, 50 साल से ऊपर वाले को नहीं लेना है। वो जनरली गुस्सा कि ये सारा निजाम धर्म भरम कर देंगे जब इनको गुस्सा आएगा, तो ये एक मुसीबत है। एहतिकाम में भी हम लोग 50 साल से ऊपर मना, इधर आते हैं एहतिकाम में, वो बराबर अपना कोई हल्का हो रहा है, मदनी मुजाकरा हो रहा है, तो ये सो रहे हैं। या मर्जी का मालिक है ना, कुल्ली इख्तियारात हैं। और फिर कौम के सोने का टाइम आया, ये बैठे बैठे खांस रहे हैं, कि मर्जी है, न कोई रोक थोड़ी सकते हैं। तो अब सोने वालों के मसले, फिर ये क्या बात बात पे लड़ाई, मैंने अभी तो तकिया यहाँ रखा था, तुमने लिया है, अरे मरा बेचारा, अब उसको पता भी नहीं कि तकिए का कलर कौन सा था। ये मैं नक्शा खींच रहा हूँ कि ये मतलब बातों का हिसाब किताब, तो ये मतलब जिसको अपनी मेमोरी में पोसाते लिए ये बुजुर्ग। तो हाँ, बाकी 80-80 साल के बुजुर्ग भी होते हैं, जो पुराने बुजुर्ग होते हैं ना, जो इत्तिकाफ कर करके वो 10, 20, 15 इत्तिकाफ किए, उनको तो खुसूसी रियायत मिल जाती है, रख लेते हैं इनको। मैं देखे 80-80 साल वाले भी देखे, इक्का दुक्का हमारे यहाँ मोतकीफ होते हैं, पूरे पूरे महीने के लिए आके बैठ जाते हैं। तो क्या ये तजर्बे में होते हैं कि ये फड्डे नहीं कर रहे होते। तो बहरहाल लेके इज्तिमा में आए आप, मदनी मुजाकरे में, और मदनी काफिले में जो मैंने अर्ज किया उसके मुताबिक मदनी काफिले में भी सफर करें और खूब दीन का काम करें। अल्लाह करेगा तो इसमें दुनिया और आखिरत की भलाई होगी। जाहिर है आपका अपना भला है, मेरा भी भला है। मेरा भला तो यूं है कि मैं, आप नहीं भी मानेंगे तो मेरा भला है। एक ही की दावत में सवाब इस पर मुनहसिर नहीं कि सामने वाला अमल करेगा तो सवाब मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो अमल करे ना करे, अपना काम पहुंचाना था पहुंचा दिया, सवाब अपना इंशाअल्लाह खरा हो गया। तो कुछ है जहन बनता है इज्तिमा में आने का, मदनी मुजाकरों में हाजिरी का, माशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मदनी मुजाकरों की हाजिरियां जिन जिन से बन पड़े, और घर में गुनाह भरे चैनल चलते होंगे, आप लड़ाई नहीं करो। घर में लड़ाई करेंगे ना कि ये गुनाह है, जहन्नम में जाओगे, हराम हो रहा है, ये फिर मसाइल हो जाएंगे। आप अगर आपका जन गालिब है कि ये समझ जाएगा, तो जो नरम हो ना, दीन की तरफ माइल हो, उसको अगर समझाना आता है, मोहब्बत से आप समझाएं, एक एक पर इनफरादी कोशिश, वरना फिर आप चुप रहे। आप सिर्फ मदनी चैनल देखें, आप गुनाह देखें, गुनाह भरा चैनल देखना नहीं है, वरना ये वाकई जहन्नम की तरफ घसीट रहा होता है। बदनिगाही, आप बोलो मैं खबरें देखता हूँ, खबरें तो औरतें दे रही होती हैं, बेपर्दा जवान औरतें, क्या देखना क्या है। फिर बार बार वो जवान औरतों के मनाजिर भी दिखाते होंगे, तो ये बच नहीं सकते आप खबरें में। इसलिए ये गुनाह भरा चैनल अपने हाथ से ऑन होना नहीं चाहिए, ओनली मदनी चैनल। और अपनी जो आल औलाद है, अगर नरमी से मुमकिन है तो मदनी चैनल के फवाइद बताएं कि ये अपना इलेक्ट्रॉनिक मुबल्लिग है, इसको सुन लिया करें, तो नमाजों का जहन बनेगा, बच्चे नमाजी बनेंगे, बरकतें आएंगी, तिलावतें होती हैं, नातें पढ़ी जाती हैं, इस तरह इंशाअल्लाह बेड़ा पार होगा इंशाअल्लाह। एक और बात भी अगर आप थोड़ी तबीयत फरमाए कि जैसे अभी हम अपनी जवानी की बातें करते हैं कि हम तो यूं काम करते थे, अब हम यूं काम करते थे,
اب آج کل کے جو ہمارے نگران ہیں، وارڈ نگران، یو سی نگران، تو یہ تو چلے اپنے گھر میں ایک ماحول، کیونکہ ماشاءاللہ ایک بڑا طبقہ ہے جن کا دعوت اسلامی سے تعلق ہے، تو اب ظاہر اوائل میں جو کام ہوا اور اب جو کام ہو رہا ہے، تو اس میں جو ہمارے بچے جو اب ذمہ داریوں پر ہیں، نئے ہیں، درس بھی دیتے ہیں اور بھی بہت سارے کام ہیں، تو ان کے ساتھ ہمارا بیہیو کیسا ہو؟ کیونکہ اب ہم نے اگر کیا ہے کسی دور میں کام، تو ہم اگر اپنی مثالیں دیں کہ بھئی ہم تو اورنگی ٹاؤن سے پیدل آتے تھے گلزار حبیب، ہم تو ایک ایک مدرسے میں 100 کو پڑھاتے تھے، اور ہم تو یوں کام کرتے تھے، یوں کام کرتے تھے. تو یہ جس طرح آپ نے گھر کا ماحول بنانے کا فرمایا تنظیمی طور پہ، چونکہ دعوت اسلامی سے سب کو محبت ہے، اب وہ نئے جو ہے نا ان کا گیپ بہت نظر آتا ہے پرانوں کے ساتھ، کہ جو محبت بڑھاؤ جو ہے نا یہ پورا طبقہ ہی ہمارا الگ ہے. یہ جو ینگسٹر ہیں ہمارے جو اس وقت کام کر رہے ہیں، ان کو ہمارے یہ بڑے اسلام بھائی، بزرگ اسلام بھائی، یہ کس طرح ان کو ڈیل کریں؟ ان کا احترام تو بزرگوں کا کرنا ہی ہوگا. تو میں نے تو اب میرے برادری یہی ہے، میں نے سمجھا ہے. اب یہی باتیں آپ سمجھاؤ گے تو تھوڑی، آپ بھی خیر بزرگ ہیں، لیکن جوان سمجھائے گا تو یہ جمے گا نہیں. جیسا نا کہ باپ نے بیٹے کو، بڑے بیٹے کو بولا بھائی بیوقوف، زیادہ نہیں بولتے جی ابو. اب یہی چھوٹا بھائی بولے کہ باپ کی سنت ہے بڑے بھائی کو بیوقوف بولنا. اگر چھوٹا بھائی بولے ارے بیوقوف چپ کر، تو پھر بڑا بھائی بتائے گا کس طرح بیوقوف بنتے ہیں. تو ہر ایک کو اس کو جو بھی جمے گا اس کی حیثیت کے مطابق. تو اب یہ بزرگ ہیں، یہ تو بھولیں کر بعض اوقات کرتے ہیں. سب بزرگ ایسے نہیں ہوتے، شفیق ملنسار بزرگ بھی دیکھے جاتے ہیں معاشرے میں. تو جوانوں کے لیے تو یہ بشارت کافی ہے کہ اگر جو جوان بوڑھوں کا احترام کرے گا تو اللہ پاک اس کے لیے بڑھاپے میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اس کا احترام کریں گے. تو اپنے کو تو یہ نسخہ جو ہے نا اسی کو اپنانا ہے، اور بزرگوں کے ساتھ نرمی، شفقت، کیونکہ بڑھاپے میں یہ مجبوری ہوتی ہے کہ آ جاتا ہے غصہ. ایک ڈاکٹر کے پاس ایک بوڑھے صاحب گئے کہ میرے پیٹ میں تھوڑا درد رہتا ہے، ہضم نہیں ہوتا کھانا. تو اس نے کہا کہ بابا جی بڑھاپا ہے، ایسا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب کمر میں درد بزرگوں بڑھاپے میں ہوتا ہے، بس ذہن بنا لیں آپ، ٹک ٹک بڑھاپے میں لگی رہتی ہے. یہ 2-3 اور اس نے بولیں گے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، اس کا بھی سبب بڑھاپا. اب بڑے میاں کو آیا تان گیا، ڈاکٹر ہے کیا جان، ہر بات میں بڑھاپا بولتا ہے. تو ڈاکٹر سمجھ جاتا. انہیں بڑے ٹھنڈے پن سے جاتے بزرگ جو آپ کو غصہ آیا نا، یہ بھی بڑھاپے میں ایسا بھی ہوتا ہے، یہ سمجھانے کے لیے مطلب بڑھاپے میں یہ ہوتی ہے چیزیں. تو اس لیے جوانوں کو سمجھنا چاہیے. جیسے وہ ڈاکٹر نے اس کو غصہ نہیں کیا، نرمی سے کہا کہ یہ بڑھاپے میں ہوتا ہے. تو ہمیں بھی جو ہم میں سے نوجوان ہیں یہ بوڑھوں کا احترام کریں، بزرگوں کا احترام کریں، تو اس طرح ان کا غصہ بھی ٹھنڈا رہے گا اور ان کو بھی گناہوں سے بچانا ہے نا. کیونکہ بڑھاپے میں پھر یہ کبھی گالی نکلتی ہے، دل آزاری کرتے ہیں، جھاڑتے ہیں. بزرگ جو ہوتے ہیں بڑھاپے میں بھی کئی گناہ ایسے ہیں جو بڑھاپے کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ ہوتے چلے جاتے ہیں. اس لیے اس سے بھی ہمیں بچنا ہے. پیار سے، محبت سے لانا ہے. کہ جوانوں کے تو خریدار بہت ہوتے ہیں، ان بزرگوں کو واقعی ہمارے یہاں پوچھا نہیں جاتا، ان کو پوچھنا چاہیے. میں اپنا ایک پرانا واقعہ، جب ہم مسجد جا کر بیان کرتا تھا، میں کسی گھر میں ہم کو لے گئے شاید کھانا کھلانے کے لیے، مسجد میں بیان کے بعد، عشاء کے بعد میرا بیان ہوا ہوگا، اس کے بعد قافلہ تھا ہمارا شاید. تو میں گھر کے اندر داخل ہوا، ایک بڑھیا کھاٹ پہ پڑی بیٹھی ہوئی تھی، اکڑوں، بہت سوکھی ساکی چھوٹی سی بڑھیا تھی، بہت عمر تھی اس کی. تو کوئی اس کی طرف نہیں دیکھتا، سب گزر رہے تھے. میں رک گیا، حالانکہ اس میں بوڑھا نہیں تھا، پرانی بات کر رہا ہوں. میں رک گیا، میں نے سلام کیا ہوگا اس کو. جب بڑی بی کیسی ہو تو وہ تو کھلی، بولا بیمار ہوں، دعا کرو اللہ محمد کے صدقے مجھے موت دے، صلی اللہ علیہ وسلم. تقریباً یہ الفاظ تھے. خیر، بڑھاپے سے تنگ آ کر، مصیبتوں سے تنگ آ کر موت کی دعا مانگنا جائز نہیں ہے، یہ مسئلہ عرض کر دوں. تاہم مطلب وہ اتنی زندگی سے بیزار تھی، اور
ऐसियों को बेचारों को कोई पूछता नहीं है, ना औलाद पूछती है, औलाद को टाइम नहीं होता। एक वाकया बाहर मुल्क में था, मैं तो किसी ने बताया कि हमारे अजीज जो हैं इनको कैंसर डिक्लेयर हुआ है। ये तड़प रहे हैं बेचारे कि बेटा मेरे पास आकर मुझे देखे। बेटा उसी शहर में रहता था, तो उसने मुझे बोला कि यार बेटा बोलता मेरे को टाइम नहीं है। बाप का कैंसर डिक्लेयर हुआ है, बेटे को आने का टाइम नहीं था। ये अजीज ने उसके मुझे बताया, मेमन बिरादरी का वाकया। तो ये मतलब ये भी हो रहा है। अब ऐन मुमकिन है कि वो बुजुर्ग जो हों उनसे ये सेट ना हो, जैसे नौजवान आजकल सेट ना होने की वजह वही झाड़ना, लिताड़ना, बात बात पे नुक्ताचीनी करना, टोकते रहना, तो इस तरह उस पर इमेज जो है ये औलाद पर गलत पड़ गया हो, ये भी हो सकता है। लेकिन वो लाख बाप कुछ भी करे, इसके साथ उसने सलूक तो करना ही पड़ेगा। ये वो नालायक बेटा था जिसने मतलब इस तरह का जवाब दिया कि मेरे को टाइम नहीं है, लेकिन हो रहा है ये माशरे में। आपने फरमाया कि ये पुराने इस्लामी भाई या बुजुर्ग जो हैं ये गुस्सा करते हैं, ये दुकान पे गुस्सा नहीं करते, सिर्फ घरों पे करते हैं। क्या बात है यार, सही पकड़ा आपने। दुकान में करेंगे तो खाएंगे क्या? पापा इस्लामी भाई माशाल्लाह नियत भी करते हैं, आते भी हैं, लेकिन हमारे कुछ जिम्मेदार इस्लामी भाई उन्हें पिक नहीं करते हैं। कम से कम उनकी एबिलिटी के मुताबिक तो उनसे काम लें। अब ये होता है कि हर एक एक्टिव हो जाए ना तो फिर वो दुनिया में फिर बचेगा कौन? तो यूं मतलब कुछ एक्टिव होते हैं, बाकी भीड़ होती है। सभी को संभालना होता है, पुरानों को भी लेकर चलना होता है, नयों को भी लेकर चलना होता है। हम समझते यार ये पुराना है या दाढ़ी वाला इमामे वाला है, किसी को लिफ्ट नहीं कराता, मिलता नहीं, तो इस पर भी अपने को इनफरादी कोशिश करनी है ये ताकि मिलनसार बने, दूसरों पर काम करे। उसको डांटेंगे ये भी चला जाएगा कि बाद नजर बहुत पक्के आते हैं और बिल्कुल कच्चे होते हैं। तो ये है कि एक्टिव सब नहीं होते। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया से अर्ज़ी है कि हम जो है, जैसे मुझे तकरीबन 1984 यानी 84 से मैं दावत इस्लामी के माहौल में हूँ, तो यहाँ एक अक्सरियत है जो हमसे भी ज़्यादा सीनियर इस्लामी भाई होंगे। शोभा मोहब्बत बढ़ाव की तरफ से ये मतलब एक तरकीब ये भी है कि ये जो पुराने इस्लामी भाई ज़िम्मेदारान हैं, इन्होंने अच्छे अच्छे मतलब दावत इस्लामी के लिए कुर्बानियाँ दी, सारे काम किए, तो क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि दोबारा असर नो जो है दावत इस्लामी के दीनी कामों में हम सब जो है मिलजुल कर हिस्सा भी लें और दावत इस्लामी के दीनी कामों को आगे बढ़ाने में अपनी कोशिशें जारी रख सकें? माशाअल्लाह। तो इसमें यह भी होता होगा कि बाज़ औक़ात पुराने इस्लामी भाई जिन्होंने काम किया, अब काम में कमी आई या किसी को समझाना है, भले काम कर भी रहे हैं तो अपने कारनामे सुनाना और कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, तुम ये करते नहीं। मैं तो बस भर के ले जाता था अपने इलाके से, यार तुमसे तो मतलब यानी कि सुजुकी भी नहीं भरती। तो ये बातें करने से बाज़ औक़ात दिल आज़ारी की सूरत बनती है, लोग बज़न होते हैं। मैं किसी और मुल्क में था तो मुझे एक मुबल्लिग की शिकायत मिली थी, यार ये बयान में अपने फसाइल बयान करता है। था बहुत समझदार वो मुबल्लिग, ये बोला अपने फजाइल बयान करता है तो यार लोगों पर इंप्रेशन खराब पड़ता है। बोलो बुजुर्गों के वाक़यात सुनाए, अपने मुंह अपने फजाइल अपने वाक़यात ना सुनाए कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, या फुला मेरे साथ तो मेरी यूं दुआ कबूल हो गई, मेरे दिल में अल्लाह पाक ने यूं डाला तो मैंने यूं किया तो यूं हो गया। ये बाज़ों की आदत होती है। खैर अब मुझे ये कहा कि आप इसको समझाएं। खैर मैंने समझाया, अल्हम्दुलिल्लाह वो समझ गए और बाद में शिकायत मिली भी नहीं। वक्फ मुबल्लिग थे वो, और अब तो वफात पाए भी कई साल गुजर चुके हैं। अल्लाह गरी के रहमत फरमाए, इनको मग़फ़िरत फरमाए। तो ये बाज़ों की आदत होती है, तो इससे भी बचना चाहिए। हाँ, इसको हम अपने बुज़ुर्गों पर क़यास नहीं करें, जैसे कि बुज़ुर्गान दीन हमारे गुजरे या बाज़ उलमा हज़रात जो होते हैं वो अपने वाक़यात बाज़ वक़्त बयान करते हैं, तो क्या वो अपने अक़ीदतमंदों में बयान कर रहे होते हैं। इससे क्या कि इनको एक तरग़ीब मिले या तहदी से नेमत, लेकिन हर एक की ये नीयत होना ज़रूरी नहीं है। और बाज़ वक़्त नीयत अच्छी हो भी तब भी उसका इम्प्रेशन
अच्छा नहीं पड़ता कि बाज ऐसे पहलू भी लोगों के सामने होते हैं उसके कि जो अभी ये पारसाई की बातें कर रहा है लेकिन इसने यूं भी किया था यूं भी, ये लोगों को पता होता है तो यूं भी इंप्रेशन खराब पड़ता है। लिहाजा अपनी बातें या अपने कारनामे बात बात पे सुनाने के बजाय मतलब और बहुत सारे अंदाज हैं जिससे एक आदमी को करीब किया जा सकता है। सबको मिलजुल कर आखिरी सांस तक दीन का काम करना चाहिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सलीम अत्तारी, शाह फैसल कॉलोनी। अरे सलीम मदीना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 1988 में दावत इस्लामी में आने की सादत हासिल हुई। अच्छा, उन खुश नसीबे में हूँ 10 साल पहले वालों में आप भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। कि जिनको आपने खुसूस शफ़क़त फरमाई, ख्वाब में दीदार कराया और पहली दफ़ा गुज़ार हबीब में जो है बैत हासिल की। फिर अल्हम्दुलिल्लाह करम हुआ 92 में जो इंडिया में काफ़िला गया बाई ट्रेन, उसमें भी हाजिर नसीब हुई। अच्छा, मैं भी साथ था कि मैं आप भी हम- ट्रेन में गया हूँ। जी जी, आप बम्बई तशरीफ ले गए थे, मुझे बरेली, दिल्ली, रामपुर मिला था और अल्हम्दुलिल्लाह बरेली शरीफ में बयान दर्ज करने की सादत हासिल हुई। उसके बाद फिर मदीना शरीफ की हाजिर हुई, वहाँ आपकी खिदमत का मौका। मदीने में तो कई साल हाजिरी रही। आप अल्हम्दुलिल्लाह कितने साल रहे? मैं तकरीबन 10 साल रहा। 10 साल। अब यह है कि फिर दुआ करें, फिर अल्लाह ताला वहाँ की हाजिर नसीब करे, फिर आमीन। खिदमत का मौका दे। अब उम्र कितनी हो गई आपकी? मेरी हो गई 53। 53। जी अभी तो अधेड़ उम्र है। 60 साल की उम्र होती ना तो पूरा बुढ़ापा। माशाअल्लाह। बस बात ये ना, जो लम्हे थे सुकून के वो सब मदीने में गुजार आए। अल्हम्दुलिल्लाह। अमीर अहले सुन्नत आपसे एक सवाल अर्ज़ है कि बाद इस्लामी भाई बड़े मेहनती भी होते हैं, पुरखुलूस भी होते हैं और मेहनत करते हैं, दावत इस्लामी का काम करना चाहते हैं, लेकिन कभी वो कारोबारी मामलात में कोई नुकसान हो जाए और लाखों का नुकसान हो, जब उसमें वो फंस जाते हैं, अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि किसी तरह इससे निकलें और दावत इस्लामी का भी काम करें, लेकिन वक्त हालात उसको निकलने नहीं देते। उसके बाद वो भी दावत इस्लाम का काम करना चाहता है तो मजबूरी ये होती है, अगर वो मामा बांधता है तो उस पर तनकीद होती है, दर्स व बयान करता है उस पर तनकीद होती है, यहाँ तक कि वो अगर मस्जिद में नमाज़ पढ़ने भी जाता है ना तो उसको बोला जाता है तू कर्जदार है हमारा, तू मस्जिद में नमाज़ पढ़ने क्यों आया। अब वो इस्लामी भाई जो नागानी आफत में या किसी भी तरह से इस मसले में अटक गया, अगर वो दावत इस्लामी का काम करना चाहता है तो वो अब किस तरीके से करे। उसके जज्बात भी हैं, वो उसमें अल्लाह ने सलाहियतें भी दी हैं और मौके इलाके में उसका एक वर्क भी है, नेटवर्क भी है, लेकिन वो जब देखता है कि अगर मैं अमामा बांध के जाता हूँ तो तनकीद उस पर नहीं, दावत इस्लामी में होगी तो वो अमामा बांधना छोड़ देता है, सुन्नत का लिबास पहनना छोड़ देता है। और कुछ जाहलियत, कुछ लाइल्मी है कि लोगों में शायद ये कॉन्सेप्ट है कि जो दावत इस्लामी में है वो सिर्फ लखपति होगा, उसके पास कभी नुकसान नहीं होगा, वो कभी बीमार नहीं होगा, उसको कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। तो इस सूरत हाल में वो इस्लामी भाई जो इस पोजीशन में आ गया है वो अब क्या करे। आपको कुछ परेशानियां हुई हो अगर तो अल्लाह पाक दूर फरमाए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, बाज़ औक़ात इंसान को अपनी ज़बान फंसा देती है। जब बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ लोगों से ये इन्वेस्टमेंट करवा लेता है और नीयत ख़राब नहीं होती लेकिन पैसे उसके फंस जाते हैं। अब इनसे ये जान छोड़ाता और ये समझते कहा गया है, क्यों हालात ख़राब होते हैं तो जिम्मेदार भी फिर कतराते हैं। ये इस तरह के बाज़ हालात हो जाते हैं तो इसमें मौके की मुनासबत से ही बंदा मसाइल हल करे। अब इसमें अगर गुस्सा करेगा, अड़ाउड़ी करेगा, ये कि मेरे को यूं करते हो, मेरे को यूं बोलते हैं, मेरे को यूं बोलते हैं, तो फिर बनेगा नहीं। अदा बापा करने से ही काम चलेगा। मोहम्मद बिलाल अतारी हैदराबाद। हुजूर वाला, मुझे आपसे एक वाक़या बहुत पुराना अपने सन बलूगत से पहले का गुजारिश करनी थी। हमारे उस्ताद थे मरहूम गुलाम मोहम्मद अत्तारी और याकूब अत्तारी, गुलाम मोहम्मद सेनेटरी जो हैं आपके जो रिश्तेदार हैं, और अब्दुल गनी अत्तारी। हम लोग आए थे गुलजार हबीब मस्जिद में। मेरी लाइफ का पहला इज्तिमा था गुलजार हबीब में। इतना क्राउड मैंने कभी ज़िंदगी में देखा ही नहीं था जो गुलजार हबीब में देखा था। माशाअल्लाह। मैं तो शज़र रह गया था कि इतना बड़ा भी इज्तिमा हो सकता है क्या। बहरहाल वहाँ पर इज्तिमा में शिरकत की, दुआ में भी हाजिर हुई। फिर
शहीद मस्जिद में जो है जुमे की नमाज के बाद वो बस में निकी की दावत के लिए कहीं जाते थे। अब वहाँ पहुँच के जुमा वहीं पढ़ा। जुमे के बाद बस में सब बैठे तो मैंने एक चीज़ नोट की थी, जब इतनी तो शऊर नहीं था ना, जानते थे, तो इस्लामी भाइयों ने कहा कि जनाब पहले आप चढ़िए। तो आप अमीर काफिला थे, तो हुआ ये कि आपने सबको चढ़ाया पहले एक एक करके। जिसने भी कहा कि आप पहले चढ़ो तो आपने ये इरशाद फरमाया कि मैं अमीर काफिला हूँ, लिहाजा मैं जो कह रहा हूँ वो करना होगा, आप चढ़ें। जब सब चढ़ गए बस में तो अब हुस्न इत्तेफाक देखें कि बोनट की जो सीट थी उसके करीब में मुझे जगह मिली। बस भर चुकी थी, जैसे अब ऊपर तशरीफ़ लाए तो सब खड़े हो गए कि आपको जगह देने के लिए। आपने फरमाया कि मैं अमीर हूँ, लिहाजा सब बैठ जाओ। तो सब बैठ गए। तो अब सब बैठे तो बोनट पर जगह थी। अब बस वो मैं उसको बताऊँ कैसे, मेरे तो अजीब कैफियत हो गई कि आप उस जगह पर तशरीफ़ फरमा हो गए। अब मैं तो बैठ नहीं पा रहा था, लेकिन अब इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी, पैरों में हकीकतन लर्जा भी तारी हो रहा था कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। तो आप बोनट पर बैठ गए, आप रोज़े से भी थे। तो ये जो आपने सबको पहले चढ़ाया और फिर सबको बिठाया इत्मीनान से, आखिर में आप फिर बस में सवार हुए, तो इसमें ये जो तरीक़ाकार आपने अपनाया, तो इसमें क्या पैगाम मतलब मिलता है और इससे क्या हम सीख सकते हैं? इसमें क्या मोटिवेशन है, क्या डायरेक्शन है? कुछ इस पर भी हमारी रोशनी। इसका पैगाम ये कि आप अभी तक याद रखे हुए और आपको यूं अच्छा लगा नहीं है, इससे आपको दावत इस्लामी अच्छी लगी ना। मैंने इससे ही जो सीखा ना, ये सीखा कि अमीर काफिला को जो भी चीज़ लेनी है या काम करना, पहले अपने शुरका की फिक्र करनी है, इसके बाद बाकी मामलात को देख। मेरा ये अंदाज था, वैसे काफिले में पहले बिठाता था या सही दिल में उतर गई ये अंदाज देखकर। पहले तो मैं होता था और मैं ही सबको चढ़ा के फिर बैठ जाता था। फिर बाद में मैंने अमीर बनाने शुरू किए काफिले के, तो मैं बोलता था कि मेरे सबको चढ़ने दो, फिर आप चढ़े, क्योंकि मैं खुश था भाई, मैं भी अमीर हुआ, तुमसे बड़ा हूँ, तो आखिर में तुम बैठोगे, सबसे आखिर में मैं बैठूंगा। ये जो अंदाज है ना, ये मोहब्बत बढ़ाने वाले अंदाज। जी जी, ये जो अंदाज है, मोहब्बत बढ़ती थी। इससे भाई बाजू बाजू रोते थे। एक को ट्रेन में जाकर, जब ट्रेन में भी काफिला होता था ना, वापसी में एक एक के पाँव पकड़ के मैं माफिया मांगता था, सुभान अल्लाह, आपकी खिदमत नहीं, सुभान अल्लाह, आप मुझे माफ कर देना। तो इस टाइम भाई रोते थे। कोई कोई तो ऐसा भी देखा कि वो पहले ही बोलते नहीं 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 माफ किया, तो घबरा के, ये भी हुआ है। तो ये क्या दिलों में उतरने के ये रास्ते हैं। आपने वो दीन का काम कर रहा था, अड़ी करके वो मजबूत खूबसूरत कपड़े पहन के, मुश्किल है काम। सादगी, इनके साथ घुल मिलकर, मतलब जो काम करने का मजा और जो इसका फायदा, ये अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये भी एक चीज मैंने देखी है, मैंने 12 दफा देखा कि आप एक के कंधे पे हाथ होता था, दूसरे के कंधे पर हाथ होता था, तीसरे से गुफ्तगू हो रही होती थी। ये भी करता था मैं जी। ये काश अगर ये अंदाज ये सब अपना लेना। बस मुझे ऐसा होता था कि यार इसको यूं होगा कि यार मुझे तवज्जो नहीं दी जा रही, तो फिर एक के कंधे से यूं बढ़ा देता था, उस पर थोड़ा उंगलियां रख देता था। ये भी करता था मैं, यूं लेके बाद वो चलता था यार किसी को यूं। फिर अब जिसको मैं पकड़ूं वो जान छोड़े नहीं, ये भी होता था, हटता नहीं था। वजह फरमाया। तो फिर मैं अपनी तरकीब, ऐसा भी तो हुआ ना, किसी और से भी तरकीब होती थी कि अब जिसको मैं पकड़ूं ना, फिर थोड़ा आप दूसरा किसी को आपने ले भी आना और इसके साथ इधर खाली जगह करा के लगा दे। इस खादिम को भी आपने कई दफा इरशाद फरमाया कि जनाब जब आप फैज़ान मदीना हैदराबाद आए थे, तो एक यहाँ शहरी के बाद दोबारा जा रहे थे फैज़ान मदीना, तो आपने मुझे कान में इरशाद फरमाया कि नए नए इस्लामियों को जो पीछे ना आगे लो, मुलाकात कराते रहो। इस तरह फिर मैं एक एक को मुलाकात के लिए आपकी बारगाह में लाता रहा, वो मिलते रहे, खुश होते रहे, सबको मौका मिला। सबको तवज्जो देनी मुनासिब होती है कि जो बड़ा हो ना, जो सबका मर्जा हो कि लोग उसकी तरफ रुजू करते, उसको चाहिए कि छोटे बड़े सब पर तवज्जो दे। तो मेरी कोशिश होती थी। इस्तिकामत किस तरह मिले 12 माह में? मुकद्दर की बात है। इसमें देखो, सफर तो सफर है, इसमें आजमाइशें तो आती हैं, और बाज़ औक़ात मर्जी का खाना नहीं मिलेगा, बाज़ औक़ात मर्जी का आराम नहीं मिलेगा, तो कोई ऐसे इस्लामी भाई से भी पाला पड़ेगा जो अपने मिजाज का नहीं होगा,
उल्टी सीधी बातें करेगा या जो भी ये होता है, मतलब पांचों उंगलियां सेम नहीं होती, तो ये सब आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा कि आप राय खुदा के मुसाफिर हैं। अब हज के लिए जाते हैं तो आप समझते हैं वहाँ मसाइल नहीं होते, मसाइल तो एयरपोर्ट से शुरू हो जाते हैं, इसलिए घरों में शुरू हो जाते हैं कि हमारे लिए ये लाना, हमारे लिए वो लाना। और एक खाता पीता इस्लामी भाई वो बोला मैं यार हज के लिए कैसे जाऊं यार, इतने है ना, हज से ज्यादा तो इतने तहफ़ खानदान में मुझे देने पड़ेंगे, बहन को ये देना ना, बाप को ये देना पड़ेगा ना, बहू को ये देना पड़ेगा ना, सास को ये देना पड़ेगा ना, यार मैं कैसे जाऊं। यानी कि अगर 5 लाख हज का खर्चा है तो ये 12 लाख का और बैलेंस हो तो मैं जाऊं, ये मसाइल है। तो ये आजमाइशें भी अब ज़ाहिर है इसको भी फेस करना ही है। हज जो करना है, मदीने जो जाना है, तो अगर गुंजाइश है तो इसी तरह मतलब ये कि फिर एयरपोर्ट पे अलग मसाइल, हज पे ले जा रहे हैं, हवाई जहाज में अलग मसाइल होंगे, फिर वहां के एयरपोर्ट पर पता चलेगा कितने 200 होते या वहां भी मसाइल होंगे। तो आखिर जाना मदीने है ना, तो यूं आस्ते आस्ते मसाइल सहते 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 जब आका के दामन से लिपटेंगे सारी थकन दूर हो जाएगी। ये मदीने में कदम रखेंगे, रहमत आगे बढ़कर गले लगा लेगी। तो ये पहले थोड़ा इम्तिहान तो होगा। तो यहाँ भी अपने वाया मदीना जन्नत में जाना है ना, आप लोग जो आए तो ये काम तो जन्नत में ले जाने वाले हैं। तो आप बोलोगे यानी बिल्कुल यूं अदर अदर उठा के कोई जन्नत में रख दे आपको, तो ये कैसे होगा? अल्लाह चाहे तो सब हो सकता है। तो बहरहाल लेके तकलीफें आएंगी, बिल्कुल ये जहन बना लें आएंगी, और मैं पीछे हटने वाला नहीं। तकलीफों से घबराना मर्दों का काम नहीं, इंशाअल्लाह। हजूर, हम 12 माह के लिए तशरीफ़ लाए हैं, तो 12 माह में इबादत में खुशू व खुजू कैसे पैदा करेंगे? नमाज में खुशू खुजू का तो पूरा बाब है फिजान नमाज में, वो पढ़ लें आप। तो हर इबादत का अपना अपना खुशू खुजू, रोज़े का अपना खुशू खुजू, फिर आप जाकर नेकी की दावत देंगे तो उसका शायद अपना खुशू खुजू हो। बहरहाल लेके इनके तमाम तर आदाब के मुताबिक इखलास के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए काम करेंगे तो इंशाअल्लाहुल करीम सब में खुशू खुजू भी आ जाएगा। सरसब्ज़ इस गुलज़ार